سابق گورنر پنجاب پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود کہتے ہیں حکومت غیر سیاسی ہے اور ملک میں اداروں کے خلاف جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار خود حکومت ہے۔ چنیوٹ میں پولیس کی فیصل آباد روڈ پر کارروائی، شراب اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ بین الاضلاعی منشیات اسمگلر محمد علی عرف کالا گرفتار، قبضے سے شراب کی 260 بوتلیں برآمد۔ سناوا کی بستی گشکوری میں خاوند سے معمولی تلخ کلامی پر ماں نے اپنی 2 سالہ معصوم بیٹی کا تیز دھار آلے سے گلا کاٹ دیا۔ تھانہ سناوا پولیس نے ماں کو گرفتار کر کے آلے قتل برآمد کر لیا۔ اور ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی شہری بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شدید پریشان، سبزی اور پھل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے پر شہریوں نے حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، شہنامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ شہنامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے خبر دیں گے آپ کو چنیوٹ سے، جہاں پر پولیس کی فیصل آباد روڈ پر کارروائی، شراب اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ آگاہ کریں آپ کو چنیوٹ پولیس کی فیصل آباد روڈ پر کارروائی، شراب اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ بین الصوبائی منشیات اسمگلر محمد علی عرف کالے کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے شراب کی 260 بوتلیں برآمد کر لیں۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں، تھانہ خان گڑھ پولیس کا غریب مزدور کے گھر پر دھاوا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، خواتین اور بچیوں پر لاتوں مکوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ آگاہ کریں آپ کو مظفر گڑھ کے نواحی تھانہ خان گڑھ پولیس نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے غریب مزدوروں خدارہ بخش کے گھر دھاوا بول دیا، گھر کے دروازے توڑ ڈالے اور خواتین اور بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اہل خانہ پر لاتوں مکوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ معصوم بچیاں چیختی چلاتی رہیں مگر پولیس کے جوان بے رحمی سے بچیوں پر تشدد کرتے رہے۔ متاثرہ خاندان نے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او مظفر گڑھ سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، ننکانہ صاحب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوام دوست انقلابی اقدام کے تحت ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں سائلین نے جائیداد کا تنازع اور ریونیو سے متعلق دیگر درپیش مسائل کے بارے میں افسران کو آگاہ کیا۔ لوگوں نے موقع پر مسائل حل کرنے پر ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر صوبہ بھر کی طرح ضلع ننکانہ صاحب کے تمام اراضی ریکارڈ سینٹرز میں ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں اراضی ریکارڈ سینٹر میں ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد عثمان خالد، اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ سہولت یاٹ وٹو نے عوام الناس سے ریونیو سے متعلق مسائل سنے اور موقع پر متعلقہ تحصیلدار، سب رجسٹرار، قانون گو، پٹواری، عملہ اراضی ریکارڈ سینٹر کو ان مسائل کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد کا کہنا تھا کہ ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہریوں میں ریکارڈ کی درستگی، فرد کا اجرا، رجسٹری سمیت ریونیو سے متعلق دیگر معاملات حل کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام اراضی ریکارڈ سینٹر میں بہترین، بروقت اور معیاری سروت فراہم کی جا رہی ہیں۔ میرا جی کام ہے بھی میں بینک چو قرضہ لے آیا، وہ جی قرضہ ادا کر دیتا، اگے جی میں بڑے چکر مارے میرا نہیں کام ہویا، اج آیا تو صاحب دی مہربانی ڈی سی دے پیش ہویا تو انہیں کام کر دیتا جی۔ 10-15 دن ہو گئے خوار ہو رہے ہیں، ڈی سی صاحب آئے ہوئے جی اور جمت تھے لگے ساڈا اسے ٹائم کام ہو گیا جی۔ ریونیو سے متعلق کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد عوام الناس کو سستے اور فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد کامران، میٹرو ون نیوز، ننکانہ صاحب۔
और यहाँ आपको बताएं, साबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम सैयद अहमद महमूद का कहना है कि हुकूमत गैर सियासी है और मुल्क में इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल हो रही है उसकी जिम्मेदार खुद हुकूमत है। आगाह करें आपको, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने पीपल्स पार्टी बोरेवाला के रहनुमा कर्नल रिटायर्ड राव आबिद अली मरहूम के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क में इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल हो रही है उसकी जिम्मेदार खुद हुकूमत है। 3 बार वजीर आजम रहने वाला शख्स ऐसी जबान इस्तेमाल करने पर क्यों मजबूर हुआ, उसके छुपे मुहरिकात को देखना चाहिए। अपोजिशन को दीवार से लगाकर ऐसी जबान इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया है। अपोजिशन को एक जगह इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी खुद हुकूमत की है। और यहाँ आपको बताएं, गुजरावाला में निजी कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। तकरीरी मुकाबले में तुलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदे मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से एज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत मुअल्लम के अनवान से एक तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। तकरीरी मुकाबले में तुलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तुलबा ने हजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डालते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत आला तरीन मुअल्लम इंसानियत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खिलाफत के बेमिसल अलमबरदार और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का बेमिसल शहकार हैं। इस मौका पर मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल एज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरांवाला प्रोफेसर साबिर हुसैन का कहना था कि उन्हें इस बात की दिली खुशी है कि नौजवान नस्ल में अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है। ने आज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन की सीरत नबी पर आज एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया और आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुअल्लम जिस तरह तमाम मुकर्रीन ने अपने ख़यालात का इजहार किया है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है कि हमारे नौजवान, हमारी नई नस्ल में जज्बा ईमानी अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि पहले से काफी बहुत ज्यादा हो चुका है। तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद सद्दाम डायरेक्टर एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरांवाला, मोहम्मद आजम चेयरमैन अल मुशरक साइंस स्कूल, हाजी अल्ताफ हुसैन डोगर चेयरमैन एमएस मेमोरियल हाई स्कूल, राव मोहम्मद यूब चेयरमैन अल्लामा एहसान शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रोफेसर साबिर हुसैन प्रिंसिपल एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और प्रोफेसर तलाल डार एडमिनिस्ट्रेटर एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरांवाला ने बतौर मेहमानान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के आखिर में मुकाबले में अव्वल, दोम और सोम पोजीशन लेने वाले तुलबा उमर यकूब, रहमान और फाहद शाद को शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो वन न्यूज गुजरांवाला। खबर देंगे शोरकोट से, जहां पर पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया जबकि 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। आगाह करें आपको, शोरकोट में पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया जबकि 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया जबकि इसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर कुद्दूस बेग की बल्दिया लॉन हारूनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। आगाह करें आपको, डीपीओ बहावल नगर कुद्दूस बेग का इस मौके पर कहना था कि मेरे दरवाजे हर आम आदमी के लिए हमेशा खुले हैं। शहरियों के मसाइल और शिकायत के हल और अवामुन्नास को बिला रुकावट फौरी इंसाफ की फरहमी के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। और यहाँ आपको बताएं, चेयरमैन नेशनल रूरल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया जिसमें ज़िले भर के ब्रांचेस के ऑफिसर्स और मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। आगाह करें आपको, महफिल मिलाद में नात ख्वानों ने गुलहाय अकीदत पेश किए। महफिल मिलाद के शुरका से खिताब करते हुए मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने कहा कि हम सब एक फैमिली हैं और हमारी खुशियाँ और गम साझे हैं, जबकि हमें अपना टारगेट पूरा करना खुशहाली की जानिब कदम बढ़ाने का अज़्म है। जबकि कारोबार की तरक्की इसी वक्त मुमकिन होती है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और जिम्मेदारी से पूरा करें।
साथ ही साथ आपको बताएं, पतोकी में डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की हिदायत पर डीएसपी पतोकी अकरम खान की क़यादत में पुलिस का फ्लैग मार्च एसएचओ थाना जिला पतोकी वहीद आरिफ समेत पुलिस की भारी नफरी और गाड़ियों के हमरा शहर भर में फ्लैग मार्च किया गया। आगाह करें आपको, डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की हिदायत पर डीएसपी अकरम खान की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। डीएसपी अकरम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं ताकि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जा सकें। जराइम पेशा अफराद को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और यहाँ आपको बताएं, डीपीओ काड़ा फैसल शहजाद ने थाना सिटी रेनाला खुर्द में खुली कचहरी लगाई और आने वाले साइलिन की दरखास्तों पर मौके पर अहकामात जारी किए। साइलिन में खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद भी शामिल थी। इस मौके पर मजीद क्या कहना था डीपीओ काड़ा का, कहते हैं कि अपने नुमाइंदे वक्कास चौधरी की इस रिपोर्ट में। डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद की थाना सिटी रनाला खुर्द में खुली कचहरी में तहसील भर से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। डीपीओ उकाड़ा ने अवामुन नास के मसाइल सुने और फौरी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए। डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद का कहना था, खुली कचहरी का मकसद इंसाफ अवामुन नास की दहलीज पर पहुंचाना है और हर तफ्तीश मेरिट पर करना मेरी अवलीन तरजीह है। खुली कचहरी में डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद के साथ डीएसपी रेनाला सर्कल जियाउल हक चौधरी, एसएचओ थाना सिटी जहांजेब भट्टू, एसएचओ थाना सदर फरक शहजाद भट्टी व दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी और सियासी रहनुमा, तर्जमान पंजाब हुकूमत सैयद गुलजार सफ्तैन शाह, टिकट होल्डर पीपी 183 मार मोहम्मद जावेद, उम्मीदवार सिटी मेयर डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी शकील अहमद चौधरी ने शिरकत की। सहाफ़ी बरादरी में चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब इजाज ताहर कादरी, जहूर अहमद शहीन, साजिद हुसैन चौधरी, राव अतीक गोहर, वकास चौधरी, राना नवाज अहमद ने शिरकत की। मजीद डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद का कहना था, हर खासो आम के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। वकास चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, रेनाला खुर्द। और यहाँ आपको बताएं, मुल्क भर की तरह कमालिया में भी शहरी बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। सब्जी और फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मुल्क भर की तरह कमालिया में बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि अशिया खुर्द-ओ-नोश और सब्जी फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। शहरियों का बढ़ती हुई महंगाई पर मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहना था, बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आटा, चीनी, दाल सब महंगा हो गया है। इस हुकूमत से अपील है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कम करें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आटा, घी, दाल, चीनी सब कुछ महंगा है। हुकूमत से अपील है कि वो इस महंगाई को कंट्रोल में लाए। महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ के रख दी है। सारा दिन मजदूरी करते हैं और शाम को 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। महंगाई में सोच से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। हुकूमत से अपील करते हैं, खुदारा गरीब और मजदूर तबके को महंगाई के इस दलदल से निकालने के ठोस इकदाम किए जाएँ ताकि गरीब सुख का सांस ले सके। मियाँ महबूब आलम, मेट्रो 1 न्यूज़, कमालिया। और यहाँ आपको बताएं कि हरोड़ पक्का में मौसम सरमा आते ही लंडा बाजारों में भी रश बढ़ गया है, जहां अवाम गर्म मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हरोड़ पक्का मौसम तब्दील होते ही शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। दीगर शहरों की तरह रेलवे चौक, हरोड़ पक्का और रेंद जादा में भी लंडा मार्केट सज गई है। शहरियों ने भी मौसम सरमा के मलबूसात खरीदने के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया है, जहां वो लंडा बाजार में अपने और बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से शहरियों का कहना है कि मैं 8वीं दुकान पर आ रहा हूँ जी सब्जियों का सामान लेने के लिए, तो यहाँ इतनी महंगाई है कि 1000 रुपये वाला आइटम जो है वो 1500 का बता रहे हैं, जो 200 रुपये वाला आइटम है वो 500 का बता रहे हैं। बताओ हम कहाँ से खरीदें? हम गरीब आदमी हैं तो इसीलिए लंडे में आते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? रोटी पूरी नहीं होती यहाँ पर, और यहाँ इतनी महंगाई की हुई है इन पठान लोगों ने। हम 200 वाला आइटम 50 का मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं जी, ये महंगाई का दौर है जी, गरीब आदमी कहाँ जाए? इसे माल महंगे मिल रहे तो हम महंगे बेच रहे हैं। हमारे तो 10-20 रुपए दाने में है, हम तो ज्यादा नहीं कमाते। किस तरह माल पीछे से आ रहा है, इस तरह इधर महंगे हो जाते। जब पीछे माल महंगा होगा तो इधर भी महंगा चलेगा।
जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि पहले भी बेरोजगारी की वजह से हम बहुत परेशान हैं। दूसरा, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लंडा भी नहीं खरीद सकते। अगर यहाँ पर बात की जाए दुकानदारों की, तो दुकानदारों का भी यही कहना है कि लंडा हमें जो है पीछे से बहुत महंगा मिलता है, इसलिए जो है मजबूरन हमें जो है महंगा बेचना पड़ता है। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पका। और यहाँ आपको बताएं, कोट अद्दू में दारुद्दीन पनाह से एमपीए मलिक गुलाम कासिम हंजरा और जिले सदर मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद यार हंजरा की क़यादत में हंजरा हाउस से सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला मुजफ्फरगढ़ वर्कर कन्वेंशन के लिए रवाना हो गया। कोट अद्दू मुजफ्फरगढ़ में मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन दारुद्दीन पनाह से एमपीए मलिक गुलाम कासिम हंजरा और जिलाई सदर मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद यार हंजरा की क़यादत में हंजरा हाउस से सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला मुजफ्फरगढ़ वर्कर कन्वेंशन के लिए रवाना। काफिले में शामिल कारकुनों के शुक्रगुजार हैं। वर्कर कन्वेंशन में शामिल होकर कायदीन का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। एमपीए मलिक गुलाम कासिम हंजरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह आज ये जेड़ा सारा वर्कर कन्वेंशन है इंदे विच असां तमाम दोस्त बुजुर्ग भिरा असां सब दे शुक्रगुजार इसे ते इंशाअल्लाह भरपूर तरीके नाल अपने कायदीन दा इस्तकबाल करे सू और उन्हें को इंशाअल्लाह बावर करे सू कि ये जेड़े सिलेक्टेड हुकूमत है इंशाअल्लाह असां उन्हें ते बहु भारी से और ये ऐलान करे सू के इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब कदम वधावन असा इंशाअल्लाह इस्लामाबाद तक इन दे पिछो वेसो ते इंशाअल्लाह ई हुकूमत दे डी गिड़े बन चुके और बहुत जल्द ए गरीब को मारन वाली हुकूमत गरीब को खत्म करने वाली कहा कि अपने कायदीन का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत का जल्द ही बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम इस सिलेक्टेड हुकूमत का इस्लामाबाद तक पीछा करेंगे। आज के मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, एहसन इकबाल, सरदार अवैस खान लगारी, मलिक कासिम हंजरा, मलिक अहमद यार हंजरा का भी कारकुनों से खिताब करेंगे। कैमरामैन हसनैन खान के साथ मोहम्मद याकूब, मेट्रो 1 न्यूज, कोट अद्दू। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको मुस्तफाबाद में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया। कहरोड़ पका में सैवरेज का निजाम तबाह हो गया। मजीद किस शहर में क्या हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद के नवाही गांव राय कलां के मरकजी कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा माफिया का राज। कब्जा माफिया ने शहर खामोशा को भी ना बख्शा। मुस्तफाबाद के नवाही गांव राय कलां की मरकजी कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा माफिया का राज है। मरकजी कब्रिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 136 कनाल 14 मरले है, जिसमें 9 कनाल 9 मरला पर कब्जा माफिया ने कब्जा लिया हुआ है, जो कि इंतजामिया के मुंह पर जोरदार तमाचा है। कहरोड़ पक्का में सीवरेज सिस्टम तबाह होने से वार्ड नंबर 23 के इलाकों में सीवरेज का पानी गली मोहल्लों में जमा होने लगा। गलियां झील का मंजर पेश करने लगी। दरख्वास्तें देने के बावजूद भी किसी ने इस इलाके के सीवरेज सिस्टम पर तवज्जो न दी। इलाका मकीनों का म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज। जनूबी पंजाब के सहरा में रेसर गाड़ियां फराटे भरने के लिए तैयार। मुजफ्फरगढ़ और लिया में 5वीं थल जीप रैली का इनकाद की तैयारियां जारी। पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार दीपालपुर का अचानक दौरा। सहूलत बाजार और THQ अस्पताल पहुंच गए। अवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। शक्करगढ़ बरतानवी सफारती अमले का दौरा करतारपुर। पॉलिटिकल काउंसलर लोना थॉम्स और विक्टोरिया करतारपुर पहुंच गयीं। बरतानवी सफारतकारों ने पाकिस्तान की जानिब से सिख कम्युनिटी को फराहम की गई सहूलतों की भी तारीफ की। सादकाबाद संजरपुर में दुकानदार और मिर्च डीलर में झगड़े में डंडे, सोटे और असलहा का आजादाना इस्तेमाल किया गया। डीलर 2 दर्जन अफराद लेकर दुकान पर पहुँच गया। पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाला मूसा, मंडी भाउद्दीन, मलकवाल और सरगोदा की आवाम का दरीना मुतालबा है कि मिल्लत एक्सप्रेस के साथ लोअर AC कोच लाला मूसा से लगाई जाए, ताकि पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से कारोबारी हजरात और फैमिलीज को बेहतरीन सहूलियात मुयसर हो सकें और रेलवे के रेवेन्यूज और आमदन में भी इजाफा हो। नीज ये कि 15 अक्टूबर से बिजली की तरसील वाला RTL प्लांट मज़कूरा ट्रेन के साथ नहीं लगाया जा रहा, जिसकी वजह से ट्रेन फैसलाबाद से लाला मूसा आते हुए अंधेरे में सफर करती है और मुसाफिरों के साथ साथ मुलाजमीन को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। रेलवे
मुलाजमीन और लोगों की बड़ी तादाद ने रेलवे हुकाम और इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इस मसले का फौरी हल किया जाए। मशीर वजीर आला पंजाब फॉर लाइव स्टॉक खान फैसल हयात जबवाना ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इनके हमरा PTI सदर तहसील 18 हजारी खान, फखर अब्बासी जबवाना सियाल और गौर खान जबवाना भी थे। अलीपुर से जहां थाना सिटी की हदूद से दिन दिहाड़े खतून को अगवा कर लिया गया। 4 मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर शमीम बीबी को अगवा किया। चुनिया पहला हादसा हरचौकी के करीब 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। पीछे से आने वाली रेत के भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसा में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी मौका पर ही जाँ बहक हो गए। दूसरा हादसा मीरकोट नहर के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसा में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि उसके 2 कम उम्र बच्चे शदीद जख्मी हैं। खबर देंगे आपको सनावा से, जहां पर बस्ती गशकोरी में खामन से मामूली तलख कलामी पर मां ने अपनी 2 साला मासूम बेटी का तेज धार आले से गला काट दिया। थाना सनावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मां को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। आगाह करें आपको सनावा की बस्ती गशकोरी में खामन से मामूली तलख कलामी पर मां ने अपनी 2 साला मासूम बेटी का तेज धार आले से गला काट दिया। थाना सनावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मां को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया, जबकि 2 साला मासूम बेटी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब रुख करते हैं चिश्तिया का, जहां पर हुकूमत पंजाब के इक़दामात के मुताबिक बनाए गए सहूलत बाजार का डिप्टी कमिश्नर शोएब खान जदोन, असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर और मकामी इंतजामिया के साथ उन्होंने दौरा किया। हुकूमत पंजाब के इक़दामात के मुताबिक आवाम को रिलीफ देने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए चिश्तिया में भी बनाए गए सहूलत बाजार में डिप्टी कमिश्नर शोएब खान जदौन ने असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर और मुकामी इंतजामिया के साथ सहूलत बाजार का विज़िट किया। सहूलत बाजार में मुकामी इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात और स्टॉल पर अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी और प्राइस को भी चेक किया। वहाँ पर ख़रीदारी के लिए आने वाले लोगों की शिकायत सुनी और फौरी तौर पर उनको हल करने के अहकाम भी जारी किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शोएब खान जदौन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सहूलत बाज़ार बेसिकली आपको पता है इस वक्त हम तकरीबन कोई 12 सहूलत बाज़ार लगा चुके हैं। ये एक सिर्फ इंडिकेशन थी इस चीज़ की कि अगर कोई बंदा बस प्राइसेस को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है तो वो हम उसको ना करने दें। इसमें बेसिक जो इंग्रेडिएंट था सहूलत बाज़ार में वो आटा और चीनी थी, जिस पे ये कहा गया था कि जी शॉर्टेज है। तो वो आटा जो है वो फरावानी के साथ है, साथ ही जो पिछले दिनों से चीनी का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। तो हमारे यहाँ पर तकरीबन अभी कल परसों से मुख्तलिफ जो कराची पोर्ट पे चीनी उतरी है वो आना शुरू हो गई है। आपके सामने अभी हमने उसको देखा भी है। हमारे तमाम सहूलत बाज़ारों के अलावा बाकी हमने कोई 82 पॉइंट्स अभी तक किए हैं और इसको हम मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं कि हम गाँव के लेवल तक इंशाल्लाह इस शुगर को पहुँचाएँगे। सबसे ये कहूँगा कि हमने किसान प्लेटफॉर्म शुरू किया है कि जो हम अक्सर से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी जो किसान है उसका इत्तिसाल होता है, वो अपनी जो चीज़ है वो लाता 10 की है, उसको आड़ती जो है वो 100 की करके बेचता है। तो अब हमने तकरीबन तमाम अपनी जो मंडियां हैं उसमें और सहूलत बाज़ारों में किसान प्लेटफॉर्म मुतारफ़ करवाया है कि आप अपनी अगर सब्ज़ी लगा रहे हैं तो बिला खौफ खतर आप इसमें आएँ और बेचें, ना हम आपसे कोई चार्जेस लेंगे और इंशाल्लाह आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। जी इनका कहना है किसान प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर किसान अपनी सब्जियात को बगैर किसी टैक्स या मार्केट कमेटी की अदायगी के बगैर सहूलत बाजार में बेचे ताकि किसानों को भी माली फ़ायदा हासिल हो। शाहिद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़, चिश्ती। अब ले चलेंगे आपको सांगड़, जहां पर मुख्तलिफ इलाके गंदगी के ढेर में तब्दील हो गए। मज़ीद अहवाल जानते हैं अजीज़ुर रहमान से। जी अजीज़ुर रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सांगड़ शहर की अहम शाहराह पर मौजूद है। एम ए जना रोड पर जो तालाब का मंजर पेश कर रही है। बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म हुए 3 माह गुजर चुके हैं, पर कोई भी अब तक सांगड़ म्यूनसिपल कमेटी में अब तक कोई भी अफसर तैनात नहीं हो सका। अफसर तैनात होने की वजह तो सामने नहीं आ रही, लगता है कोई सियासी वजह ही है जिस वजह से अफसर तैनात नहीं हो रहे। आपको बताया चलूँ कि इस वक्त हम एम ए जना रोड पर मौजूद है। एम ए जना रोड पूरा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। एम ए जना रोड भी इस तालाब का मंजर पेश कर रहा है, नाले उभर रहे हैं, तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस हवाले से हम शहरियों से मजीद बात करते हैं। क्या कहेंगे? ये सांगड़ की बदकिस्मती है कि सांगड़ का मेन चौक है पीर पगारा चौक जिसे कहा जाता है,
वहाँ ये हालत है कि घुटनों जितना पानी हमेशा यहाँ खड़ा रहता है और कोई जो है ना इसका सद्देबाब नहीं होता। बाकी गली मोहल्लों की बात की जाए तो वहाँ गली मोहल्लों से गुजरना महाल हो गया है। नमाजी बंदा अपने कपड़े बचाकर किसी भी गली से बड़ी मुश्किल से गुजर सकता है, वहाँ इससे भी बुरी हालत है। मुलाजिमों की इस वक्त तनख्वाहें ना होने की सूरत में बल्दिया मुलाजिम सरापा एहतजाज है। उन्होंने शहर के सफाई के इंतजाम को छोड़ दिया है, वो किसी भी तरह की कोई भी सफाई नहीं कर रहे। इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर पेश कर सफाई के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। आपको बता चलेंगे शहरियों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द शहरों बल्दिया मुलाजिमों की तनख्वाहें की जाएँ, कोई अफसर तैनात किया जाए के शहर साफ हो। और यहाँ आपको बताएं, शेखोपुरा में पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में वुकला की बड़ी तादाद ने राना सैफ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल शेखपुरा सीट से राना सैफ खान की इलेक्शन की तैयारियां और कैंपेन जारी हैं, जिसमें शेखपुरा बार के वुकला की जानब से भरपूर हमायत का ऐलान किया गया। 600 से ज्यादा वुकला ने राना सैफ के बैजेस अपने सीने पे से जाके जीत और खुशी का इजहार किया। हम राना सैफ साहब की आज इंशाल्लाह जिस तरह की यहाँ पे गैदरिंग है, ये उनकी फतह का दिन है। माशाल्लाह पूरी कचहरी ने, शेखपुरा कचहरी ने और बाकी पूरे लॉ डिवीजन ने राना साहब के हक में फैसला दे दिया। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 28 तारीख को 6 नंबर राना सैफ साहब का फतह का दिन होगा। आज हम राना सैफुल्लाह साहब के साथ इस अशाइया में इकट्ठे हैं और हमारी बार शेखपुरा के बहुत बड़ी तादाद में दोस्त इकट्ठे हैं और राना साहब की सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं। मैं राना सैफुल्लाह को आज खुशखबरी देना चाहता हूं कि इतने वुकला की हमायत के साथ इंशाल्लाह राना सैफुल्लाह जीते। राना सैफ खान ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे बार के बुजुर्ग हमारा असासा और हमारे नौजवान वुकला हमारे माथे के झूमर हैं। अमानत चौधरी, मेट्रो वन न्यूज, शेखपुरा। और यहाँ आपको बताएं, चूनिया में ड्रग इंस्पेक्टर अतीकुर रहमान खान का तहसील भर में बगैर लाइसेंस के अद्वियात फरोख्त करने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 अताई डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं इस हवाले से मजीद इस रिपोर्ट में। चूनिया में ड्रग इंस्पेक्टर लैको रहमान खान का तहसील भर में बगैर लाइसेंस के दवाइयात फरोख्त करने और अतायत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खोखर अशरफ में अताई रशीद का रशीद शफाखाना पर छापा मारकर रशीद क्लिनिक को सील कर दिया। चूनिया में चांदनी चौक में नवाज क्लिनिक को सील कर दिया गया और ममनुआ दवाइयात को कब्जा में लेकर कार्रवाई के लिए ड्रग कोर्ट भेज दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर लैको रहमान खान का कहना था कि किसी को भी गैर कानूनी काम करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी और बगैर लाइसेंस के किसी को भी दवाइयात फरोख्त करने की इजाजत नहीं होगी। ड्रग इंस्पेक्टर का मजीद कहना था कि ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। माफिया कितना ही बासर क्यों ना हो, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। कैमरा टीम के साथ गफूर अंजम, मेट्रो वन न्यूज, चूनिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को बहावल नगर की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा जोया से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, ऊंट के मुंह में जीरा। हुकूमत ने एक मरतबा फिर आवाम को मामू बना दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.57 और डीजल की कीमत में 80 पैसे कमी करके। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए। मजीद हम उनसे जानते हैं कि हुकूमत ने उनको क्या रिलीफ दी है। सर, ये बताइएगा कि हुकूमत ने ₹1.57 और डीजल में 80 पैसे कमी की है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि ₹1.57 पेट्रोल में कमी करके आवाम को बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया है। 80 पैसे जो है ना डीजल में कमी की गई है। जब कीमतों में इजाफे की बात आती है तो 5 से 10 रुपये इजाफा किया जाता है। जब कीमतें कम करने का वक्त आता है तो 1 से 1.5 रुपये कीमत में कमी की जाती है। हमारा ये मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों में उसी तरह कमी की जाए जिस तरह बढ़ा दी जाती है। 5 से 10 रुपये बढ़ा दी जाती है, इसी तरह 5 से 10 रुपये कीमतों में कमी की जाए। जी, शहरी का ये कहना था हुकूमत ने एक मरतबा फिर हमें मामू बना दिया है। जिस तरह पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता है इसी तरह पेट्रोल की कीमत में कमी भी की जाए। जी ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा जोया हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।